man has been seen on these videos trying to intimidate Bhavna, and now sections of SC/ST law, when there has been no altercation, nothing that has been out of turn done by Bhavna. I'm joined at this moment by Miss Smriti Irani. Smriti Irani ji, she's Union Minister for Women and Child Development. Smriti Irani ji, टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर को अरेस्ट कर लिया है पंजाब पुलिस ने। पहले रैली पे अपने पब्लिक फंक्शन में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और बाद में अरेस्ट कर लिया SC/ST प्रोविजंस के तहत। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जहां प्रेस फ्रीडम इतनी भी नहीं है कि पब्लिक फंक्शन अटेंड कर सके? मुझे लगता है कि ऑपरेशन शीश महल के बाद जिस प्रकार से आपकी रिपोर्टाज पे कटाक्ष हुआ है वो स्वाभाविक था, लेकिन मैं स्तब्ध हूं कि एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग कर उनको एक हताशा की व्यवस्था से छोड़ना और कानून का दुरुपयोग करने का प्रमाण जो आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं वो वर्तमान में मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं स्तब्ध हूँ कि अब तक जो जर्नलिज्म की कम्युनिटी है वो म्यूट स्पेक्टेटर क्यों बनकर बैठी है। ये किसी भी जर्नलिस्ट का अथवा किसी भी चैनल का अधिकार है कि अगर करप्शन से संबंधी अथवा पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधी कोई न्यूज है तो उसको वो प्रसारित करे, लेकिन इस प्रकार से कानून की मर्यादा को भंग करने का प्रमाण जो आज आप अपने चैनल पर दे रहे हैं उसके माध्यम से एक महिला पत्रकार का इंटिमिडेशन मेरे लिए तो बहुत ही स्तब्ध करने वाला विषय है। मैं मात्र यही कह सकती हूँ कि जर्नलिज्म की एथिक्स के मर्यादा में रह के रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को सच को उजागर करने के लिए इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा एडिटर्स और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से विशेष आग्रह है कि आप अगर वाकई में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग में मानते हैं, you cannot pick and choose whose freedom you will defend. But Ms. Smriti Irani, she is, as you said, a woman journalist. As the Women and Child Development Minister, I want to ask you, प्रोफेशनल महिलाएं जो काम करने जाएंगी और मीडिया में रहेंगी, अगर उन्हें इस तरह से इंटिमिडेट किया गया। I don't think this is about the gender of the journalist. I think this is about the ethics with which the journalist and the channel for which the journalist is working has brought out a particular story which may be uncomfortable for the political disposition of the Aam Aadmi Party. But I think this blatant misuse of the instrument of law to subjugate to a political cause, especially a female journalist, is shocking for the entire nation. I repeat, I reiterate, the journalism community at large, including Editors Guild, which is a mute spectator as of now, for me is extremely disappointing. My appeal would be, let's not choose whose freedom we are to defend. Let's ensure that everybody who reports within the ethical boundaries of law needs that kind of support. And I am not right now having the access of watching the visuals on your channel. I'm depending on your audio description of the same. But if they are men who are trying to intimidate a female reporter, I think that is an indication of a complete breakdown of a constitutional framework of engagement with the local government. Not just men intimidating her, Miss Smriti Irani, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उसे अरेस्ट किया गया, sorry, we've lost that call with Smriti Irani. This clearly shows the overstepping of the boundaries by Punjab police, and it cannot be far from the truth that the Punjab police is acting on the basis of political pressure by the party that runs the police and law and order in the state, which is the Aam Aadmi Party. Times Network stands together. टाइम्स नाउ नव भारत और टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर के साथ हम सब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। अब तक
19 घंटे हो चुके हैं, भावना किशोर को रिलीज नहीं किया जा रहा। कानून के कई इस तरह के सेक्शंस लगाए गए हैं। अब तक उसे कोर्ट में भी कब प्रोड्यूस किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये किस तरह का कानून है जहां एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाती? व्हाट इज द लीगल डिफेंस दैट वी कैन मेक? The question continues to baffle us right here in the newsroom. We'll continue to follow this story, handing it back to the studio for now. Yes, and the only तो सुना आपने हमारे एडिटर इन चीफ राधिका कुमार बात करी थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से, जिन्होंने साफ कहा कि अगर पुरुष पुलिसकर्मी इस तरीके से एक महिला पत्रकार को लेकर गया है तो ये सीधे सीधे गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो साफ कहती है कि महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। किसी भी महिला को शाम ढलने के बाद थाने में नहीं बिठा कर रखा जा सकता, लेकिन किसी भी नियम को माना नहीं गया। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपने देखी। जो बात संविधान की होती है